یار وہ تو نبی تھے، ان سے بہتر کوئی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ہی. تو ہمیں ہم جو فری ٹائم میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم کام کرنے کے. پارٹ ٹائم کام کہ آپ کام میں نہیں آ رہے تو گھر تو چلا رہے ہیں، اور پارٹ ٹائم کرنے کے لیے بھی آپ کو ایٹیٹیوڈ چاہیے. سارا گیم ایٹیٹیوڈ کا ہے. میں بہت سے لوگوں کو بتاؤں کہ پروموٹر کی جاب لگے گی، دن کا 120 ملے گا، 3-4 گھنٹے لگا رہے نہیں کریں گے. بولے یار پروموشن میں گھر جب آ جاتی ہے بانٹوں گا، میں پھر بانٹوں گا. میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے رسول نے بکرے نہیں چلائے؟ یہ داؤد علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹ کے ان کو مارکیٹ میں بیچ کے پیسے نہیں کمائے؟ یار وہ تو نبی تھے، ان سے بہتر کوئی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ہی. تو ہمیں ہم سر نہیں چاہیں گے. پارٹ ٹائم کام ہمیشہ اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہمیشہ. وہ آپ کی آئیڈیل جابس نہیں ہوتی، چاہے وہ سیلس کی ہوں، پروموشنس کی ہوں، ڈیٹا انٹری کی ہوں. مگر یہ بات ہے کہ ایک پیسے ضرور مل جاتا ہے آپ کو، کچھ منی ملتا ہے، دوسرا آپ ایکسپیرینس بھی گین کرتے ہو. تو ایسی پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز کو OPVGR بھی شیئر کرتا ہے، اور ہم اس کو ایسے طریقے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹ ٹائم پروجیکٹس کا ایک وہ کھولیں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پارٹ ٹائم کام کرنے کے لیے ان سے مطلب انرول ہوں، اور ہم ان کو پارٹ ٹائم کام بتایا جائے. ریگولر پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز مل رہی ہے ویکینڈ پہ، ویک ڈیز پہ. آپ کے پاس اگر کچھ گاڑی ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس سے بہت سارے کام ہیں. تو پارٹ ٹائم کام کے لیے ہاں نہیں، پارٹ ٹائم بزنس کی بات نہیں کریں، میں پارٹ ٹائم کام کی بات کروں. ڈیٹا انٹری لیگل نہیں ہے. 10 روپے یا 1000 روپے کمانے کے لیے ہو سکتا ہے بڑے لمبے فائن میں چلے جائیں. یہاں یہ کچھ دنوں پڑے ہیں. جی جی پاکستان ہوگا تو میں کچھ بھی کروں. جی سر، میں پارٹ ٹائم بزنس نہیں کر رہا. پارٹ ٹائم جاب بھی آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی ریسٹرکشنز ہیں یہاں پہ. نہیں، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. آپ MOL پہ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ایک بنا ہوا ہے اسپیشلی. آپ جب جاب سیکر میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یس ہاں، تو وہ اس میں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، آپ کو جاب ہنٹنگ میں الاؤ کرتے ہیں. وہ خود آپ کو سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں، اور پریارٹی ان کو دی جائے گی جو جاب لیس ہیں رجسٹرڈ ہیں. تو کوئی بھی جاب کے لیے کوئی ویزا کے لیے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ ویزا کے لیے اگر کوئی بھی کمپنی اپلائی کرتی ہے کہ مجھے 6 اکاؤنٹنٹ چاہیے، تو پہلے اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ میرا ڈیٹا بیس میں اتنے اکاؤنٹنٹ جاب لیس ہیں، تو وہ ان کی CVs ان کو فارورڈ کرتے ہیں. سو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں میرا نہیں خیال کہ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ ایون آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہائر نہیں کرتا ہے. وہ آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آفیشیلی آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹرانسفر کر لیں. فوراً یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ جی پروبیشن پیریڈ ہے اور آپ آ کے. تو اس کے لیے پورا طریقہ کار ہے. سعودی گورنمنٹ اور سعودی قوانین میں ماشاءاللہ بہت بہتری ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، فلیکسیبلٹیز ہیں. وہ لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اور ہم ایسا کوئی غیر قانونی کام آپ کو نہیں بتا رہے. بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں آپ اپنے اسکلس ہائی لائٹ کریں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اکاؤنٹ سے آپ اکاؤنٹ کریں ویسے سفائی میں جا سکتے آپ فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ ٹیلی کام زبردست. تو ٹیلی کام انجینئرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈفرنٹ فیلڈ کے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس اسکل سیٹ ہے وہ بہت سی ویب سائٹ آپ کو شیئر کر سکتے ہیں جہاں آپ یہ اپنی پروفائل بنا کے اپنی اسکل سیٹ انلیسٹ کرتے ہیں، اور آپ کو کمپنیز اور انڈیویجولس پروجیکٹس اسائن کرتے ہیں اور آپ اس کو بڈنگ کرتے ہیں. یہ سب لیگل ہوتا ہے، یہ سب رجسٹرڈ ہوتا ہے. اور اس کے تحت اگر مجھے کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے میں آپ کو رجسٹر کر سکتا ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو کرتا ہوں خواتین اور مرد لوگ گھر بیٹھ کے کانٹینٹ رائٹنگ کر کے کما رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں فوٹوگرافرز ہیں، وہ اپنے آپ رجسٹر کرتے ہیں، ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم 3-4 ہزار ریال ایونٹس میں فوٹوگرافی کما رہے ہوتے ہیں. تو پارٹ ٹائم کام کو ترجیح دیں جو آپ انمپلائڈ ہوتے ہیں، اس کو کم نہ سمجھیں. ہاں بس سر آپ کے پاس بالکل لیگل طریقے دیں گے، ایسے سیکٹر نہ کریں جو لیگل ہو. مگر لیگل آپشن بہت سارے ہیں، وہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ ورک شاپ میں بیسیکلی یہ نو کام ہے لوگوں کو جو ابھی افراد صاحب نے کیا جی اس کو زیادہ کنوے کریں تاکہ ڈر اور خوف جو ہے نا ہم اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. مل بیٹھنے کا پرپز یہ ہے. ہاں مل بیٹھنے کا پرپز یہ ہاں ہے ایک دوسرے کام بتائیں. بالکل بالکل. تو یہ کچھ چیزیں اور انشاءاللہ اس کو یہ چیزیں مزید ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کی شروعات ہے، تو کچھ اسٹیپس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس پہ میں چاہوں گا کہ میں ایک ای میل بھی کر دوں فرسٹ اسٹیپ پہ کہ یہ اسٹیپ پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں ای میل
सेंड करूँगा हर स्टेप के साथ रिस्पॉन्सेस सेंड करूँगा। आजकल जब डबल मीटिंग में बात की थी मैं थोड़ा लेटेस्ट वीडियो सेंड करूँगा आपको। जब मैंने की थी पार्ट टाइम में आप फ्री कोर्स कर सकते हैं, आपको इनकम करूँगा फ्री रिसोर्स के साथ, जहाँ आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट रजिस्टर करा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये ईमेल आएगी, अगर आप लोगों ने इस पर अपनी ईमेल्स देने की प्लीज़ अपनी ईमेल जरूर लिखें वीडियो फॉर्म में। तो जो मैं 7 स्टेप बताएं हर स्टेप पे एग्जाम्पल रिसोर्स के साथ अपनी ईमेल इंशाल्लाह आएगी। अगर ज़रा कोई सवाल है आप लोग प्लीज़ पूछिए। और वरना फिर मैं आना में बताना चाहूँगा कि राना भाई क्या करते आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जॉब्स लोगों के हेल्प करने के लिए। अगर तुम्हें आपका पर्सनल मामला है तो फिर तो आप लोग प्राइवेसी में किसी से डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है तो मे बी वन ऑफ द टीम्स इज हिडन एंड सिटिंग हियर। आप बोले शायद वो आपको कोई ना कोई सिंपल सा केस है, फ्लेवर में केस किया हुआ है और जो डेट है वो 2 महीने के बाद की मिली, कंपनी फाइनल डेट नहीं दे रही थी। हमजा जी सर बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ हमजा, क्योंकि ये वर्कशॉप और ये मीटिंग हमारी जॉबलेस लोगों के लिए है। आपका केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको पता है कि आपके केस में हमारी पूरी मुआवनत आपके साथ शामिल है और पाकिस्तान पैसे भी उसमें शामिल है और उसमें हमारे पास कोई लॉयर नहीं है, ना हम ऐसा कोई हमारी है। इसमें 2 ही हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी और जो कि आपको पूरा साथ दे रहे हैं। राइट? पाकिस्तान एम्बेसी आपका साथ दे रहे हैं। इट्स लाइक कि मैं मतलब साथ ही ना नहीं, साथ ये है कि आपको अरबी नहीं आती, पाकिस्तान एम्बेसी आपके साथ ट्रांसलेटर भेज रही है, ठीक है। माशाल्लाह एमओएल में भी आपको ये आप पहले आदमी ने जिन्होंने बताया कि मेरा फॉरेन जो है ना वो उसमें आ गया, वरना उसकी डेट हो गई और माशाल्लाह आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। आप जो दूसरा है जो पॉइंट जॉब से रिलेटेड है उसमें आप भी शामिल हैं। तो ये है वो ये है कि हम लोग जैसे कानूनी और गैर कानूनी बात हो रही थी, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो जॉबलेस है, सऊदी गवर्नमेंट भी उसको ये ऑफर दे रही है, उसको एक ऑप्शन दे रही है। तो हमारे पास है हमारी वेबसाइट है जिसका नाम या कुछ इस तरह करके किसी को अगर पता हो जी कि ना वो तकरीबन वो घंटा इसमें जॉबलेस जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं एक्सपर्ट्स कितना सफरा इसे की दर्शन दिया। और फिर जब कोई भी कंपनी वीजा के लिए अप्लाई करती है तो वो अपने डेटाबेस से पहले वो देखते हैं कि ये लोग जॉबलेस हैं तो वो उनकी सीवी फॉरवर्ड करते हैं बजाय कि उनको अकाउंटेंट का या इंजीनियर का पेपर इशू करना है। जबकि पहले ये होता था कि किसको जो चाहिए, ये एक बड़ा बेहतरीन एक काम है। अब यहाँ पर सवाल यह है, माशाल्लाह उबैद साहब ने बड़ा डिटेल से बताया कि इस वक्त आमतौर पर जो जॉबलेस लोग हैं, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो किन किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह होगा। अब ये तो सब हो गया, बात हो रही थी इंटरव्यू की। मेरे ज़हन में बार बार सवाल ये उठ रहा था कि फिलहाल इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, जब कॉल आएगी तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे उसकी तैयारी कैसे करनी है और बोलना कैसे, क्योंकि अभी जॉब कम है और जॉबलेस लोग ज़्यादा हैं। तो इस सूरत हाल में जैसे इसमें कोई शक नहीं, लिंक्डइन से अभी भी मुझे कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। लिंक्डइन एक बेहतरीन है, उसमें ये है कि आप अपनी सीवी इस तरह की बनाएं, अपनी प्रोफाइल इस तरह की बनाएं। इसमें जैसे बताया ना भाई ने कि एक लंबी तहरीर से बेहतर है कि मुख्तसर अल्फाज में आप अपने स्किल्स और अपनी एजुकेशन को बयान करें, ठीक है, और एक्सपीरियंस को। तो लिंक्डइन हो गया, बैच.com हो गया, एक्सपेट्रिएट विद लोकल जॉब्स आती हैं, छोटी मोटी जॉब्स एक्सपेट्रिएट पे आती हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर आप ये सारे चैनल यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो कि मैं पहले फेसबुक पे भी बता चुका हूँ और वो मेरा अपना आजमूदा है। हमने हमारी टीम ने कोशिश करके जो यहाँ पर रियाज में जितने स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल, जितने इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनियाँ हैं और जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं और जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं,
इनके नाम अरबी में है, अब्रार भाई sorry, जल्दी से लेकिन इनके नाम, इनके कॉन्टैक्ट नंबर और उसके सामने उनका गूगल मैप का लिंक, हर कंपनी का ऑफिस का वो हमने महफूज किया हुआ। अगर आप लोग देखना चाहें OPBG अपलोड में फेसबुक के, वहाँ पर हमने अपलोड किया हुआ फाइल्स में पड़े। तो अब मिसाल के तौर पर आप जॉब ढूंढ रहे हैं स्कूल में, तो ये ध्यान में रखें कि पहले जो रूटीन में जो बड़ी जो सेक्टर में बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने जो अथराइज जो या अप्रूव जो रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं या अपने जो सोशल चैनल्स हैं लिंक्डइन या अपनी वेबसाइट पे जो है वो शेयर करते हैं कि मुझे मेरे पास ये वैकेंसी है। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि अगर जैसी कोई जॉब आती है तो वो फौरन वो देखते हैं जो सबसे ऊपर पहले जो CV फ्रेश आई होती है ना वो उसको कंसीडर करते हैं, जो 15 दिन पहले आई थी उसको नहीं कोई भी देते। यही HR का तरीका है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप बजाय के घर बैठकर आप इंटरनेट पे वो शाम को देखें, आप दिन के टाइम में भाई ने कहा कि आप सारा दिन ना सोएं, सारी बातें रात को 2-3 बजे तक आप अगर जागेंगे इंटरनेट पे देखने के लिए जॉब तो फिर सुबह आप नहीं खुलेंगे, अपनी रूटीन का भी खराब ना करें। सुबह आप उठ के एक लिस्ट बना लें, बड़ा ईजी है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। मैं एक स्कूल में जॉब देखने जा रहा हूँ तो स्मार्टफोन मतलब उसमें आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैप खुल जाएगा और उसके साथ ही वो आपको बताना भी शुरू कर देगा कि यहाँ से लेफ्ट जाना राइट जाना। तो हर कंपनी की लोकेशन, उनके हेड ऑफिस की लोकेशन वहाँ पर सेव है। अगर चाहें तो आप उनको एक सिलेक्ट कर लें उनमें से कंपनी, मिसाल के तौर पर आपको सस्ता में नहीं जाना चाहते, आप शिरका में ही जाना चाहते हैं, शिरका की जो लिस्ट है जो आप देखते हैं कि या स्कूल है तो मदारस सब में लिखा हुआ है तो वह कॉपी करके अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप जा सकते हैं और वो आपको उस कंपनी के हेड ऑफिस तक पहुँचा दें। कोशिश है क्योंकि बहुत सारी अभी भी सऊदी अरब में ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी जॉब अनाउंस नहीं करते हैं, ना सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं, ना लिंक्डइन पे देते हैं। वो ज़्यादा ऐसे होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक बंदे से आपको तारुफ भी कराने वाला हूँ, तो वो अनाउंस नहीं करते हैं। तो हो सकता है ये मुमकिन है कि आप जो वहाँ पर जाते हैं और ऐसा नहीं है कि चेहरा उतरा हुआ मायूसी नहीं, कभी भी मायूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप मायूस हो जाएंगे वहाँ पर आप भाग जाएंगे। कोशिश जारी रखते हैं, अपने इरादे मजबूत रखते हैं, अपना जो खुद एतमादी है उसको आप जब आप जाएंगे वहाँ पर हो सकता है कभी आपको अच्छा ना मिले, हो सकता है वो CV यहाँ पे ड्रॉप कर दो तो बैठा होता है वही आगे जाना चाहता है। लेकिन काफ़ी बार होता है कि आप चले जाते हैं, अच्छा से मिल लेते हैं, तो जब डायरेक्ट वहाँ जाकर मिलते हैं तो मुमकिन है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप उनके पास वैकेंसी हो जो अंडर डिस्कशन है या जस्ट उन्होंने बोला है हाँ भी चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए, 2-4 लोगों को बताया है, उनको अब्दुल आदि को फैसल जवाब बताया है, तो आप चले गए, मुमकिन है कि आपको जॉब मिल जाए। और ये बड़ा अच्छा तरीका है, मेहनत है। हर कंपनी के ऑफिस से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको नया तजर्बा होगा, या तो हो सकता है आप हर्ट होंगे मुमकिन, या हो सकता है कि आपको बेहतर उम्मीद मिले, कुछ भी ना मिले तो आपको एक नया तजर्बा जरूर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस आपको होगा। और हर बात जहाँ भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस वो बढ़ेगा, आपकी खुद एतमादी, और आपको ये भी पता चलेगा कि इसलिए मैंने प्लान जगह पर मैंने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें मुझे यहाँ मुझसे गलतियाँ हुई, दोबारा आप जाएँ तो गलतियाँ ना आप करें। तो एक बेहतरीन तरीका मौजूदा हालात में जॉब तलाश करने का। अब यहाँ पर आते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, OPBG दो सोर्सेज ऐसे हैं जो कि यूजली हम लोग नोट करते हैं। एक एम्बेसी की बात भी है, अक्सर एम्बेसी की तरफ अगर आप जाएँ और उनसे बोलें कि मैं एम्प्लॉयड हूँ और वो एक लिस्ट देंगे एम्प्लॉयर्स की और करंट जॉब ओपनिंग्स पूरी लिस्ट है। मैंने भी यही किया जब मैंने एक साल पहले वन ऑफ द थिंग्स दैट इट वाज मैंने एम्बेसी अप्रोच किया, मैं जॉब लेस हूँ, मुझे आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पूरा डेटाबेस दे दिया, कोई तकरीबन 50 कंपनीज की 50 एम्प्लॉयर्स है डिफरेंट कंपनीज की और उनकी करंट ओपनिंग्स की, मैंने सब पूरी सॉल्व की। ये एक और तरीका है कि आपको लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स का, और ये बहुत कुछ रिस्पॉन्स, मुझे बहुत कुछ रिस्पॉन्स मिला जब मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। दूसरा सोर्स जो मुझे फायदा दिया मेरे दोस्तों को भी, वो है
टैलेंट हंट कंपनीज। टैलेंट हंट कंपनीज, एचआर कंपनीज ऐसी होती है कि वो आपको मार्केट करेंगे, मगर बशर्ते कि आप उनके पास रजिस्टर में कोई फीस नहीं देते वो आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको ऑनलाइन एग्जाम्पल एक मारूफ कंपनी रीस्पीड के नाम से, RESPEED, गूगल करें, आप वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं और फिर वो आपकी बात करनी शुरू कर देते हैं कंपनीज में। कंपनी जब आपको हायर करेंगी तो कंपनीज पे करेंगी रीस्पीड को, आपको पे करना पड़ता है। तो उस ऐसी एचआर टैलेंट कंपनीज से भी आपको काफ़ी सारे लीड जनरेट इंट्रोड्यूस किए कॉल्स हैं। ये दो सोर्सेस हैं, बस ये उसका सारा में है। तीसरी बात कि अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कानूनी तौर पर सऊदी गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दे रही हैं जो जॉबलेस लोग हैं, ताकि उनको वो अपनी जॉब तलाश कर लें और उनको मिल जाए। अब जॉब तो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जो है वो रोजाना खत्म हो रहे हैं, अगर फैमिली है तो वो और जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, और सिंगल भी हूँ तो फिर भी ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। तो जो बेरोजगारी के दौर में ज़ाहिर बात है कि अगर मेरे पास पैसे भी नहीं, जॉब भी नहीं है, तो फिर मुझे XYZ अपने किसी दोस्त से पैसे देने पड़ेंगे, 500 या 1000। फिर ऐसा ऐसा दोस्त भी जो है ना वो मैसेज देखते हैं तो अनसीन करके वहीं से वो व्हाट्सएप पे डिलीट कर सकते हैं कि ये पैसे ही। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ ये तजर्बे हुए होंगे। तो इस सिलसिले में मेरे जहन में, हमारे जहन में OPVGR में कुछ क्या ऐसे कोई तरीके जिसमें लोग इनको जॉब तलाश कर रहे हैं, या फिर 4 घंटे 5 घंटे कितने 6 घंटे जॉब तलाश करते रहते हैं, जो उसके पास बाकी कुछ इस तरह का काम कर लिया जाए जिससे उसके अखराजात थोड़ा बहुत प्रॉफिट करनी है, उसको जॉब हंटिंग के लिए जो पैसे उसको चाहिए वो किसी तरह मुहैया हो सके। उस सिलसिले में एक ऑप्शन हमारे पास जिस पे मैंने थोड़ा सा काम किया है और उससे मज़ीद हो सकता है। माशाल्लाह बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, जिसमें MPA और इंजीनियर और कॉमर्स के और मुख्तलिफ जो है ना सब्जेक्ट्स में वेल एजुकेटेड हमारे लोग हैं जो इसको जॉबलेस हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो हमने अपनी कम्युनिटी फैमिलीज के साथ ये बात रखी कि आप लोग में बेशुमार जो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं हमें ट्यूटर चाहिए, और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अभी भी मेरे पास 4 ऑफर मौजूद हैं रियाज से फैमिलीज की कि हमें अपने बच्चों के लिए ट्यूटर चाहिए, जिसमें 1000 से 1500 रियाल वो जो घर आके 2 घंटे 1 घंटे जो है उस बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके बदले उसको 1500 1500 इतने मिल जाते हैं। तो OPVGR के फेसबुक या व्हाट्सएप पे या फिर अपनी शार्ट डिटेल हमारे OPVGR.org में, वहाँ पर हमने जॉब सीकर सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों कि ठीक है, क्योंकि मुझे शाम को पढ़ाना है 2 घंटे, इससे आपकी जॉब हंटिंग में कोई वो नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। तो ये है कि आपका थोड़ा बहुत अपने अखराजात निकलने के लिए, ताकि जैसे कि आप किसी कर्जा लें कुछ ना कुछ आपके पास पैसे आए हैं, जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली सपोर्ट करेंगे। इस जो जॉब की तलाश जो आपको चाहिए, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो हमें शॉर्ट डिटेल भेज दें, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन अपने लिख दें, एक्सपीरियंस लिख दें, साथ में ये बता दें एक्टिविटीज फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 2 3 4 अप टू जो भी है। तो हमारे पास होगा, जो फैमिली जिसमें इंटरेस्टेड है उनको डिटेल शेयर कर देंगे, और इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी जो है ना लोगों को उसमें मदद मिलेगी। बेशक जॉबलेस लोग बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह वेल सेटल्ड लोग भी बहुत हैं जिनके लिए जिनको ज़रूरत नहीं भी है फिर भी वो चाहेंगे ठीक है कुछ आएगा और एक बंदे का जो है ना वो सपोर्ट हो जाए, जिसमें कोई आर नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई जुर्म नहीं है। इसके अलावा हमारे बड़े पीर साहब और भी हैं हमारे ऐसे बेशुमार दोस्त जिन्होंने ये ऑफर की है कि जैसे यहाँ पर पाकिस्तान बिजनेस जो है उनके पास पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, उनके सारे सैंपल पड़े हुए हैं। जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हों वो उनकी मीटिंग में करवा सकता हूँ, वो वहाँ से सैंपल ले लें प्रोडक्ट्स के,
और मार्केटिंग करके उसमें बड़ा बेहतरीन जो है वो कमीशन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और जैसे भाई साहब बता रहे थे जो पिछले दिनों दोस्तों की ज़रूरत थी कि रोज़ाना 4 घंटे के लिए बंदा चाहिए, गाड़ी अगर आपके पास 2500 दे देते हैं, मार्केटिंग का काम था। तो मेरे ख्याल में 4 घंटे में आपकी जॉब हंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2500 डालना अगर 500 डाला आपका पेट्रोल का सारा चला जाता है साल के 2 रुपये भी 2000 में कम से कम आप अपना घर का जहाँ भी बेच कर आप रह रहे हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगी, ताकि लेने ना किसी से बड़े कुछ ना कुछ आपके पास आ जाए। इससे पता जरा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। घर बैठे बैठे डिप्रेस, घर तो कभी बैठने ही नहीं। जब आप घर बैठेंगे आप अपने स्किल्स जो है समझा करेंगे। जब आप घर बैठेंगे परेशान होंगे। माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड बच्चा है ये, मैं अपने बात में सबसे तारुफ लेता हूँ, वो भी बताएगा। लेकिन बुरे वक्त आते हैं जहाँ पर आप हिम्मत हारेंगे वहाँ पर आप हार जाएंगे, तो मायूस ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सहायता करेगा। अब इसके अलावा ये तो हो गया कि जो जॉबलेस हैं तो आप अपना फ्यूचर आपको दे रहा है। एक तो अगर आप जॉबलेस हैं और इसमें अगर तो टाइम है, पार्ट टाइम है, आप कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ लीगल वेज हैं, इसमें कोई ऐसा हार नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं होता। किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं कोई ना आपको रोकता नहीं, जहाँ तक कि जो डिपेंडेंट है आपके उनको भी सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ किया और कि वो टीचिंग जॉब कर सकते हैं अंडर सेम जो है स्पॉन्सरशिप। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, हम किस तरह आप लोगों के लिए जॉब तलाश कर सकते हैं उसका हमने एक लाइन बताया किया। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो PVGR का पुराना हिस्सा है, पुराना बंदा है, और जिसने ये पोस्ट मीटिंग में नहीं था, उसने सुनी, मुझसे भी नहीं सुनी, किसी और से सुनी, तो फौरन उसकी कॉल आई और माशाल्लाह वो कंपनी में उस पोजीशन पे है। उसने कहा कि मुझे 50 ड्राइवर, 10 जो ऑपरेशनल स्टाफ और 15 लेबर चाहिए। ये मुझे उस बंदे ने खुद कहा करके आओ। तो हम लोग जब कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला असबाब भी पैदा करता है और लोग हमारे लोगों में जज्बा कुलबंदी बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो है फैसल जवाद शौकत, जो इन कंपनी में माशाल्लाह ग्राउंड ऑपरेशनल हेड हैं, इंचार्ज हैं, अपनी कंपनी के पुराने बंदे हैं। तो उनके तवस्सुत से 30+ लोगों को कंफर्म जॉब मिल गई मतलब वो गारंटी में मिल गई, मतलब उनके इंटरव्यू हो गए, सिलेक्ट हो गए। और अब बाकी HR का प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे वो पेपर वर्क और उनके बाद वो कॉल करना, लेकिन कंफर्म है कि 30+ लोगों को जॉब फैसल जवाद शौकत में मिला है। इसी तरह जब सुनी बात तो एक स्कूल है पाकिस्तानी तो नहीं था खैर, अब उसमें पाकिस्तानी हो गए सारे। उस स्कूल में 2 टीचर्स को जॉब है, उसकी वाइस प्रिंसिपल पाकिस्तानी है। हमने जब सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं, बताते हैं कि हमने ये शुरू किया है, हम इस तरह करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में ये 2 जॉब्स हैं, अगर आपके पास टीचर्स हैं तो आप जाएं। वो 2 लड़कियां, उनमें से एक लड़की उसका वालिद शुगर का मरीज है और ब्लड प्रेशर का भी और काफ़ी उम्र भी है, काम नहीं कर सकती। उसके कुछ बच्चों, उसके जो दूसरे 3 बहन भाई वो हम पाइसर में वो पढ़ते हैं, उसकी फीस भी वो भी दिया करते हैं, हम पे करवाते हैं हमारे मेंबर्स के थ्रू। और उस लड़की को जॉब लग गई, प्लस वो जब उसको रिक्वेस्ट की तो उसने उसी स्कूल में से 3 ट्यूशन भी दिलवाया, मतलब 2000 या 10,000 3 ट्यूशन की 5000। तो वो लड़की ने उसके अल्फाज से लिखाई, मुझे ऐसे लगता है कि अब सारे हमारे मसाले में, तो एक घर का एक फर्द भी अगर चल जाता है तो वो एक पूरे कुंबे को संभालता है, और 3 बहन 4 बहन भाई और माँ बाप और माशाल्लाह वो उनका सक्सेस कर गया। एक और लड़की इसी तरह वो भी अपने घर को सपोर्ट किया, मतलब 2 टीचर्स को जॉब मिली 30+ फैसल जवाद शौकत की तवज्जो से। इसके अलावा 3 हमारे बंदे हैं जो कि तमाम में हमारे ग्रुप से मुस्लिम हैं,
ان की थोड़ी सी कोशिश से 7 लोगों को जॉब मिली जमा। तो एक वीक की हमारी जो प्रोग्रेस है, छोटी सी कोशिश थी, लोगों को बताना था। अब्दुल हादी सुन रहा है, इस माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, मेट्रो में मार्केटिंग के मैनेजर हैं अपनी कंपनी में, और ये बड़ी बहुत सारी जॉब, इनका सोशल नेटवर्क और जो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। तो ये खुद मतलब बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स भी निकाल के लाते हैं कि बराबर ये तो क्या उसको अकाउंटेंट से अकाउंटेंट जो फाइनेंस का जो बंदा होता है, एफएस को क्या कहते हैं, सीएफओ 20 प्लस 30,000 इस तरह के बेशुमार जॉब्स इनके तवज्जो से मिली, जो पहले हम छोड़ देते थे सोशल मीडिया पे, वो पता नहीं किसको मिलती है वो लॉस। अब हमने अपना लाजमत तय कर दिया। पहली प्रायोरिटी बच्ची हमारे ओबीवीजीआर मतलब पाकिस्तानी के नाम लफ्ज आ जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी वॉलंटियर ग्रुप। तो ये ना समझा जाए कि ओबीवीजीआर में वही ओबीवीजीआर बाकी पाकिस्तानी नहीं, मतलब पहली तरजीह हमारे पाकिस्तानी। तो हमने लाइन इस तरह का बनाया है कि सब हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, और जो सुन रहे हैं उनसे भी, जो नहीं सुन रहे हैं बाद में बात करने का है, हमारे पास ऐसे लोग और माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर है, अपने उनके बिजनेस हैं या अपनी सीआर हैं या फिर बड़ी ऐसी पोस्टों पर हैं जो डिसीजन मेकर की पोस्ट होती है, जो कि जॉब दिलवा सकते हैं, फैसल जॉब शौकत में दिलवा सकते हैं। तो जो जॉब हमारे पास फिलहाल हमारे पास क्या थी, उसमें हमारे पास जो इस वक्त फिलहाल जॉब है उनमें एक ओरेकल ERP से की हैं, उसकी 2 जॉब हैं, एक ASP.NET डेवलपर की जॉब है, और IT में दमाम में एक IT कंपनी है उसमें जॉब है, और उसके अलावा भी इसके अलावा 2 और आई, मुझे जहन में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। मतलब ये वो जॉब्स हैं जो हमारे पास रेफरेंस से आए हैं। रेफरेंस मतलब ओबीवीजीआर के जिस तरह के मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो जॉब है। अच्छा, हमने तरीका का ये तय किया, मिसाल के तौर पर पहले हम जॉब थी वो हम सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ये जॉब है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। वो हम हमारे वजह से मैंने पहले बात की, जो हमारे मेंबर्स से पहले या हमारे लोग से पहले वो बहुत आगे तक जा चुकी होती है, तो नतीजा ये निकलता है कि हमारे लोग रह जाते थे और दूसरों को हमारा किसी न किसी को जॉब मिलती थी। लेकिन अब चूँकि मामला यहाँ का है और बहुत संगीन है, इसमें मैं देख रहा हूँ, मैं लड़कों को, बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो जॉबलेस हैं, तो हमने तरीका का ये तय किया है जिसमें आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कामयाब होगा, वरना हम अकेले अगर बोलते रहेंगे उसका भी फायदा नहीं। आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ मिलके इसमें करेंगे तो यकीन जाने की बड़ा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और इसमें हमारा कोई मफाद नहीं, ना तो माली मफाद है, हम अपने पैसे लगाते हैं, हम अपना टाइम लगाते हैं, जो लोग देखते हैं हम कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, अल्लाह ताला इंसान को सदर में इतना प्यार करता है, वो जरूरी नहीं मुझे करे, सबको करता है। तो इसी में एक हमारा साथ है तरीका का ये है कि हमने एक OBVGR.org इस पे हमने एक लिंक दिया है बना के, फॉर्म में छोटा सा बात, मतलब जिसमें आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है, लास्ट कंपनी है, इसी तरह की छोटे मोटे और अपनी CV भेजते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी CV भेज दी, हमारे पास जो साल के दौरान हमारे पास जो हमारे रेफरेंस में दोस्तों में जो IT की जॉब है, तो आपके हमें जो IT से रिलेटेड जो CVs आएंगी तो उसमें छोटी मोटी वो हमें अपने आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशन जब आप ओके करेंगे तो वो आप अथराइज पे कर देंगे कि हम छोटी मोटी आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं सीरीज में वर्ड में सिर्फ फाइल होगी, ताकि वो हम ये 1 बाय 1 तो आप नहीं बता देंगे। मसलन अभी तक भी जो है वो shonu_yahoo.com ये एक छोटा सा जो है ना आपकी पूरी वो इंप्रेशन खराब कर देता है। ठीक है, तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, लव फॉर यू और स्माइली मून फॉर यू, फिर लड़की ने भी रखा था स्माइली मून फॉर मी, तो वो जो है ना इंप्रेशन चेंज हो जाता है। तो छोटी मोटी जो आपकी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स, उनको हम करके ठीक करके और उस पोजीशन के हिसाब से अगर आपकी CV मैच हो रही है तो वो हम डायरेक्ट सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड जो लोग जो होंगे वो हम अपने OBVGR.org का ईमेल एड्रेस पे क्रिएट है, उस कंपनी के साथ आपके सबके बिहाफ पर हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आपने ये जॉब की, हमें बताया OBVGR को, थैंक यू वेरी मच, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये CVs देखी हैं,
जो कि हमें लगता है कि आपके लिए एक बेहतरीन वो रिप्लाई आपको मिल सकता है, प्लीज इनको रिव्यू करें। वो ये नहीं है कि एक जॉब के लिए हम 15 सीवीज भेजते हैं ना, 4 या 5, तो 4 या 5 के दरमियान में फैसला करना आसान होगा। ये तो हम दावा नहीं करते कि 5 को मिल जाएगी, लेकिन अगर 5 में से 1 को मिल जाती तो हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ा काम है। तो ये एक हमने रिप्लाई हमने तय किया है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत सारे दोस्त खड़े भी हैं, तो इसमें आप आए कि सीरीज हमें आप भेजें। एक तो ये कि अगर आप लोग पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें हम एक तो ये है ट्यूशन का है, और भी हम ऐसे निकालते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलके कुछ इस तरह की तरतीब बनाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ पार्ट टाइम मिले ताकि लोग घर ना बैठे। जो लोग घर बैठे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, साथ में हमदा है और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और उनके मसाइल भी चल रहे हैं, किसी का केस चल रहा है लेबर को भी कुछ, तो ये है उनको जायज़ के वो रोज़ाना हिसाब लगाता है कि 15,000 मैंने निकाल कर दिया, 10,000 का मैंने फ़ोन कर दिया था और 5 लाख मैंने रोटी खा ली, जब मेरे पास 4,000 तो उसमें से 2,000 रह गया, 1,500 रह गए, तो एक सिलसिला आपका चल जाएगा जिसमें आपका खुद एतमादी भी बढ़ेगी। दूसरा जो जॉब्स के लिए है वो हमने ये तरीका तय किया है, सब अपने जो हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अच्छी पोस्टों पर हैं, उन सबसे 1 बाय 1 हमारे टीम मेंबर जाकर रिक्वेस्ट भी करेंगे, मिलेंगे भी, और 100% मतलब आप देखें कि एक वीक में हमने पिछली मीटिंग में हमारे पास टोटल 17-18 लोग थे, उसमें से जो हमने टीम बनाई तो उस टीम में भी जो है ना एक बंदा सोया रहा है, एक बंदे ने काम किया, वो एक बंदे की काम की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि 39 लोगों को जॉब मिली दावे के साथ। जिसको चाहिए मेरे मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, लिस्ट ले लें कि केड़ा बंदा सी और ना किसी केड़ी कंपनी जॉब है, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस है, इसको हम लेके चलें। आप हमें अपनी सीरीज भेजें और हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जॉब की पूरी कोशिश करेंगे। सारे अपनी चैनल्स, सारे अपने कॉन्टैक्ट्स, सोशल कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड सर्कल सबको टच करेंगे और जो जो मुमकिन हुआ हाँ एक बार भी मैं कसम ना उठा लें कि अब मैं क्योंकि ये मैंने 14 साल 10 साल जो है वो ये काम किया है तो अब मैं यही करूँगा, ये जो हालात हैं। मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, मैंने 13 साल मैंने काम किया है, लेकिन यकीन रखें जो लोग करीबी मुझे जानते हैं मैं बेहतरीन कुक हूँ। हर में हमारे जो दोस्त आते हैं उनको पता है कि मैं खाना बेहतरीन बना लेता हूँ। अपने घर की टाइलें मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, फ्लोर टाइल्स मैंने खुद लगाई, किसी ने देखी है? बहुत से ज़्यादा देखी, आपने देखी सर? फ्लोर टाइल्स मैंने लगाई, मैं एक मिनट बता सकता हूँ। फ्लोर टाइल्स मैंने लगाई हैं, मेरे घर का पेंट वो मैंने खुद किया है, और अपने छोटे बच्चे जो 5 साल का है उसको मैं फोर्सली जो है उसको सारे काम करवाने की कोशिश करता हूँ, अपने जूते पॉलिश कर, अपने कपड़े इस्त्री कर। अगर आप ये फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक प्रोफेशन में आप मैंने ये था और यही करना हो सकता है। आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं आपके पास, कोशिश करें, बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि मुझे नहीं मिल रही अकाउंट की जाए। मेरा कंस्ट्रक्शन आपको पता है बिल्कुल बुरा हाल है, लास्ट 15 जो है 15 नवंबर जो है मेरा लास्ट वर्किंग डे था, तो हाजी को पता है और इसने बहुत कोशिश की मेरे जॉब, लेकिन मुझे पता है क्योंकि सारे देख रहे होते हैं तो मैं रेस्टोरेंट की फील्ड में आ गया, ठीक है। और मुझे उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सुनेंगे। मतलब बात करने का ये है एक प्रोफेशन में आप स्टक ना हो, अगर आपको इतनी नहीं मिल रही आपके पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोशिश करें। भट्टी का मुझे पता है इसको टमाटर काटना नहीं है, आपको काम करने बहुत सारे आप कोशिश करें, नई नई चीजें आप सीखें, उसमें आपका 2 नहीं लगेगा, कभी वक्त में काम आ जाता है। हो सकता है कभी आप शादीशुदा हो गए हो हैं या आगे हो जाएंगे, तो कभी होता है बीवी के बंदा साथ दे देता है, तो आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे इतना ही आपको आगे मुस्तकबिल में। और ये मेरी बीवी के अल्फाज हैं कि मुझे इतना पता है हमारे घर में 15 नवंबर को लास्ट वर्किंग डे था, तो जाहिर बात है थोड़ा सा तो महसूस होता है, तो हमारे पास एक बार भी जो है ना कहीं मुस्कुराहट में कमी है। इसकी वजह ये है कि उसको भी पता है कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ, और मुझे भी पता है इंशाल्लाह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी पे वो नहीं रहूँगा, डिपेंडेंट नहीं किसी का। तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल है जो कि आप लोगों में आ सकते हैं, मैं आसमान से नहीं उठ रहा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम होगा,
یہ آپ سب لوگ یہاں پر ہیں، اس کی وجہ ابوبکر صاحب، ہم لوگ آپ کو مار رہے تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے، اب دیکھا ہوگا جو بھی ہمیں لگ رہا تھا ممکن وہ ہم پاسبل طریقہ استعمال کر رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اس سیشن نے ہمیں راہ دکھایا اور انشاءاللہ اس سے ہم بہت آگے تک جائیں گے۔ ابوبکر صاحب آپ سے بات کرنے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ سوری میں کیجول اس میں ہوں، ٹریول کر کے آ رہا ہوں، اجمیر سے آج تو ڈائریکٹ یہیں پہ آیا۔ تین سے چار چیزیں ہیں جو کہ رجسٹرر ہم کام کرنا چاہیں۔ ایک ہم اے او لیول کا کوچنگ سینٹر انشاءاللہ کھولنا چاہتے ہیں ہارا ایریا میں، اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو اس میں کام کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے کورسز آپ سیل کر سکتے ہیں 10%، اس میں ریونیو ریفرل بونس انشاءاللہ۔ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے، یہ بھی جاب ہے، یہ بھی جاب ہے۔ پہلے جو ہے وہ اے اینڈ او لیول کا کوچنگ سینٹر ہارا کے ایریا میں ہمارے پاس ایک آفس اویلیبل ہے، اس کو ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی اس کے اے او لیول کے ٹیوٹرس کے لیے۔ اچھا کام ہے اس کے اندر، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایز اے ٹیوٹر یا ایز اے بزنس مینجمنٹ میں اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم۔ تو یہ ایک آپشن ہے، یہ ایک بہترین ہے آپ لوگوں کے پاس۔ سیکنڈ ہماری ایکٹیویٹیز رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، ساری ریگولیشن ہمیں کمپلائنٹ ہے ہماری۔ اگر کوئی پارٹ ٹائم اس کے اندر کورسز جنریٹ کر سکتا ہے، ایزیلی آپ سیل کر سکتے ہیں، بڑا ایزی کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ کنوینس نہیں کرنا پڑتا آپ کو، آپ کو صرف پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اکثر کافی ایزیلی سیل کر لیتے ہیں لوگ، اس کے اندر آپ کے ساتھ اگر سیشن کے بعد اٹھنا چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ تھرڈ، اگر آئی ٹی کے لوگ ہیں، ڈیولپرز یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی، تو ہم جو فری ٹائم میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم کام کرنے کے، جیسے پارٹ ٹائم کام کہ آپ کام میں نہیں آئے تو گھر تو چلا رہے ہیں، اور پارٹ ٹائم کرنے کے لیے بھی آپ کو ایٹیٹیوڈ چاہیے، سارا گیم ایٹیٹیوڈ کا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو بتا کہ پروموٹرس کی جاب لگے گی، دن کا 120 سال ملے گا، 3-4 گھنٹے لگا رہے ہیں، نہیں کریں گے، بولے یار پروموشن میں گھر آ جا کے بانٹوں گا، پیپلیٹ بانٹوں گا، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چلائے؟ یہ داؤد علیہ السلام نے لڑکیاں کاٹ کے ان کو مارکیٹ میں بیچ کے پیسے نہیں کمائے؟ یار وہ تو نبی تھے، ان سے بہتر کوئی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ہی، تو ہمیں کمزور نہیں چاہیے۔ پارٹ ٹائم کام ہمیشہ اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہمیشہ وہ آپ کی آئیڈیل جابس نہیں ہوتی، چاہے وہ سیلس کی ہوں، پروموشنس کی ہوں، ڈیٹا انٹری کی ہوں، مگر یہ بات ہے کہ پیسہ ضرور نہیں جاتا آپ کو، جلدی کوئک منی ملتا ہے، دوسرا آپ ایکسپیرینس بھی گین کرتے ہو۔ تو ایسی پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز کو OPVGR بھی شیئر کرتا ہے، اور ہم اس کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹ ٹائم پروجیکٹس کا ایک وہ کھولیں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پارٹ ٹائم کام کرنے کے لیے ان سے انرول ہوں، اور ہم ان کو پارٹ ٹائم کام کرایا کریں گے، پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز مل رہی ہے ویکینڈ پہ، ویک ڈیز پہ، آپ جو اگر پاس گاڑی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس سے بہت سارے کام ہیں، تو پارٹ ٹائم کام کے لیے ہاں نہیں پارٹ ٹائم بزنس کی بات نہیں کریں، میں پارٹ ٹائم کام کی بات کروں، ڈیٹا انٹری لیگل نہیں ہے۔ 10 روپے یا 1000 روپے کمانے کے لیے ہو سکتا ہے بڑے لمبے فائن میں چلے جائیں، یہاں یہ پولیس دنوں کھڑے ہیں، یہ لگی ہے۔ جی جی پاکستان ہوگا تو میں کچھ بھی کروں۔ جی سر، میں پارٹ ٹائم بزنس نہیں کر رہا، اگر بزنس پارٹ ٹائم جاب بھی آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی ریسٹرکشنز ہیں یہاں پر۔ نہیں، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، آپ MOL پہ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ایک بنا ہوا ہے اسپیشلی، آپ جب جاب سیکر میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یس ہاں، تو وہ اس میں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، آپ کو جاب ہنٹنگ میں الاؤ کرتے ہیں، وہ خود آپ کو سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں، اور پریارٹی ان کو دی جائے گی جو جاب لیس ہیں رجسٹرڈ ہیں، تو کوئی بھی جاب کے لیے کوئی ویزا کے لیے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ ویزا کے لیے اگر کوئی بھی کمپنی اپلائی کرتی ہے کہ مجھے 6 اکاؤنٹنٹ چاہیے، تو پہلے اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ میرا ڈیٹا بیس میں اتنے اکاؤنٹنٹ جاب لیس ہیں، تو وہ ان کی CVs ان کو فارورڈ کرتے ہیں۔ سو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں میرا نہیں خیال کہ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ
ایون آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہائر نہیں کرتا ہے. آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آفیشیلی آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹرانسفر کر لیں. فوراً یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ پروبیشن پیریڈ ہے اور آپ آ کے, تو اس کے لیے پورا طریقہ کار ہے. سعودی گورنمنٹ اور سعودی قوانین میں ماشاءاللہ بہت بہتری ہے, بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں, فلیکسیبلٹیز ہیں, وہ لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اور ہم ایسا کوئی غیر قانونی کام آپ کو نہیں بتا رہے. بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں آپ اپنے اسکلس ہائی لائٹ کریں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اکاؤنٹ نیٹ سے آپ اکاؤنٹ کریں اس سے سپورٹ مل جا سکتا ہے آپ فیلڈ کے آپ کی فیلڈ ٹیلی کام تو ٹیلی کام انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ کے ہو گیا. اگر ان کے پاس اسکل سیٹ ہے وہ بہت سی ویب سائٹ آپ کو شیئر کر سکتے ہیں جہاں آپ یہ اپنی پروفائل بنا کے اپنی اسکل سیٹ لسٹ کرتے ہیں اور آپ کو کمپنیز اور انڈیویجولس پروجیکٹس اسائن کرتے ہیں اور آپ اس کو بڈنگ کرتے ہیں. یہ سب لیگل ہوتا ہے, یہ سب رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کے تحت اگر مجھے کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے میں آپ کو رجسٹر کر سکتا ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں خواتین اور مرد لوگ گھر بیٹھ کے کانٹینٹ رائٹنگ کر کے کما رہے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں فوٹوگرافرس ہیں وہ اپنے آپ رجسٹر کرتے ہیں, ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں اور پارٹ ٹائم 3-4 ہزار ریال ایونٹس میں فوٹوگرافر کما رہے ہوتے ہیں. تو پارٹ ٹائم کام کو ترجیح دیں جو آپ انمپلائڈ ہوتے ہیں, اس کو کم نہ سمجھیں. ہاں بس سر آپ کے پاس بالکل لیگل طریقے دیکھیں, ایسے سیکٹر نہ کریں جو لیگل ہو, مطلب لیگل آپشن بہت سارے ہیں. وہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ ورک شاپ میں بیسکلی یہ نو ہاؤ کام ہے لوگوں کو جو ابھی افراد صاحب ہوتے ہیں جی اس کو زیادہ کنوے کریں تاکہ گھر خوف جو ہے نا ہم اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. دل بیٹھنے کا پرپز یہ ہے. ہاں دل بیٹھنے کا پرپز یہ ہاں ہے ایک دوسرے کام بتائیں. بالکل بالکل. تو یہ کچھ چیزیں اور انشاءاللہ اس کو یہ چیزیں مزید ہم ڈسکس کریں گے تو اس کی شروعات ہے. تو کچھ اسٹیپس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس پہ میں چاہوں گا کہ میں ایک ای میل بھی کر دوں بڑے اسٹیپ پہ کہ یہ اسٹیپ پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں ای میل سینڈ آؤٹ کروں گا, ہر اسٹیپ کے ساتھ ریسپانس سینڈ کروں گا. کل جب ڈبل ایڈریس کی میں نے بات کی تھی میں ڈبل ایڈریس کی ضرورت سینڈ کروں گا آپ کو. جب میں نے کہی تھی پارٹ ٹائم میں آپ فری کورس کر سکتے ہیں, میں آپ کو ای میل کروں گا فری ریسورس کے ساتھ جہاں آپ اپنی اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ یہ ای میل آئے گی. اگر آپ لوگوں نے اس پہ اپنی ای میلس دینے کی پلیز اپنی ای میل ضرور لکھیں ویڈیو فارم میں. تو جو میں 7 اسٹیپس بتائے ہر اسٹیپ پہ ایگزامپل ریسورس کے ساتھ اپنی ای میل ان شاء اللہ. اگر ضرور کوئی سوال ہے آپ لوگ پلیز پوچھیے. اور ورنہ پہ میں آنا بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ رانا بھائی کیا کرتے آ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جابس لوگوں کے کرنے کی. information